فرمایا جاؤ جا کے زہیر کو کہو کہ حسین ابن علی تمہیں بلا رہے ہیں۔ کم و بیش امام حسین کے ہم عمر تھے زہیر غین۔ عثمانی العقیدہ تھا۔ عثمانی العقیدہ کا مطلب یہ ہے آپ پہلی تین شخصیات کو خلیفہ مان کے مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے۔ تو جب حضرت گئے ہیں تو زہیر نے اپنے غلام کو بلا کے کہا کہ میرا یہ فلاں جو تازہ اربا صحت مند سفید رنگ کا اچھا خوبصورت گھوڑا ہے یہ کھول کر لاؤ۔ حضرت عباس کو لگام پڑا، کہا کہ میری طرف سے حسین کو ہدیہ دے دینا اور کہنا میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت زہیر صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کو ڈھایا ہے۔ آئیے یہ مزار شریف دیکھیں آپ کی، ان کا مقبرہ تھا، 2 بم سے وہ مزار کو اڑایا گیا۔ اب زہیر ہے وہ مولا سے اجازت مانگتے ہیں کہ مولا مجھے بتائیے کہ میں پیچھے نماز پڑھوں یا سامنے سے لشکر کا دفاع کروں۔ امام حسین علیہ السلام جناب زہیر کو کہتے ہیں کہ تحفظ نمازیوں کے لیے تم آگے چلے جائیں۔ غلام بیٹھ کر بی بی کے سامنے رونے لگا، تو اپنے زہیر کو روتی ہے۔ زہیر کا مولا بے گور و کفن پائمال لاش کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے لاش کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ حسین کے بیٹے گردنیں کٹی پڑے ہوئے ہیں، حسین کے اصحاب پڑے ہیں، وہاں کے ہی زہیر پڑے ہیں۔ مولا حسین نے قاصد بھیجا اور زہیر کو اپنے حضور طلب فرمایا۔ فرزند رسول نے تمہیں بلایا ہے۔ میری جگہ جا نماز پر ہی ٹھیک ہے، تجارت کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں۔ شاید کوئی واجب کام ہوگا جبھی قاصد کو بھجوایا ہے۔ دلہن میں جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں مولا حسین کے ساتھ جاؤں گا۔ میرے پاس مال دنیا سے جو کچھ بھی ہے وہ تمہیں بخش رہا ہوں۔ تمہیں طلاق دے دوں گا تاکہ میرے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ خدا گواہ ہے کہ یہ طلاق عاشقوں کی طلاق ہے۔ خدا کی قسم اگر میں مر جاؤں اور زندہ ہو جاؤں اور پھر مر جاؤں اور زندہ ہو جاؤں اور اسی طرح 1000 بار مروں اور زندہ ہو جاؤں، آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ او ذیل جوشن کے بیٹے، میں نے سنا ہے فرزند رسول سے لڑنے کے لیے تم تمام لشکر سے زیادہ حرص رکھتے ہو، اگرچہ تمہارا امیر عمر سعد رے کی بادشاہت کی آرزو میں پیر مار رہا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا سے ڈرو۔ جس بھی وعدے کی امید پر اس جنگ کی آگ کو بھڑکاؤ گے نقصان ہی اٹھاؤ گے۔ واز بند کرو، تم میدان جنگ میں ہو، مسجد کے ممبر پر نہیں۔ زبان چلانے کے بجائے تلوار نکالو۔ ہمارے لشکر کے پاس اتنا حوصلہ نہیں کہ تمہاری یہ بیہودہ باتیں سنے۔ اے کوفے والو، یہ میں ہوں زہیر ابن قین بجلی۔ خدا کی قسم حسین تمہاری دعوت کے سوا کسی اور غر سے عراق نہیں آئے اور یزید کی بیعت کبھی نہیں کریں گے۔ خاموش۔ ابن ذیل جوشن، میرے مولا حسین نے قصد نماز کیا ہے۔ فی الحال وقتی طور پر جنگ روک دیتے ہیں، میں بھی اپنی نماز پڑھ لوں گا اور تم بھی کچھ سانس لے۔ میں نماز کے بعد میدان میں آؤں گا، وعدہ خلافی کرو گے تو کتے سے بدتر ہوگے۔ نہیں شمر نہیں، انہیں نماز مت پڑھنے دو۔
ये कौन है जनाब ज़ुहैर? जनाब ज़ुहैर इब्न कैन वो हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जब पहुंचते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज ज़ुहर की जमात के लिए खड़े होते हैं। अब ज़ुहैर जो है वो मौला से इजाजत मांगते हैं कि मौला मुझे बताइए कि मैं पीछे नमाज पढ़ूं या सामने से लश्कर का दिफा करूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब ज़ुहैर को कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ नमाजियों के लिए तुम आगे चले। अब ज़ुहैर सामने खड़े और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज की इमामत करवा, और जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सलाम का आखिरी अल्लाहु अकबर नहीं कहा, ज़ुहैर सीने पे तीरों को लेकर हजरत ज़ोहिर साहब रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार को ढाया इन लोग। आइए ये मज़ार शरीफ देखिए आप उनकी। उनका मकबरा था, 2 बम से वो मज़ार को उड़ाया गया। ये पहला बम उड़ा, आधा रोजा जो है डायनामाइट हुआ, उसके बाद दूसरा बम उड़ाया गया पूरा गुम्बद समेत। इस गुम्बद पे मज़ार थी, तो जब ये मज़ार से उड़ा दिया गया पूरा मलबा तो खत्म हो गया, मगर ये आंखों से देख रहे हैं कि हजरत ज़ोहिर साहब रसूल का जिस्म सलामत का सलामत रह गया, मगर अकल नहीं आई कि हम तौबा कर लें। फरमाया जाओ जाके ज़ुहैर को कहो कि हुसैन इब्न अली तुम्हें बुला रहे हैं। कमोबीश इमाम हुसैन के हम उम्र थे ज़ुहैर कैन, उस्मानी अकीदा थे। उस्मानी अकीदा का मतलब यह है कि आप मौला अली की खिलाफत बिला फसल के कायल नहीं थे। आप पहली 3 शख्सियात को खलीफा मान के मौला अली को चौथा खलीफा मानते थे। उस वक्त में सुन्नी और बरेलवी देवबंदी ये नाम नहीं थे शनाख्तों के, उस वक्त में नाम कुछ और थे। जब हजरत गए हैं तो ज़ुहैर ने अपने गुलाम को बुला के कहा कि मेरा ये फला जो ताज़ा फरबा सेहतमंद सफ़ेद रंग का अच्छा खूबसूरत घोड़ा है, ये खोल कर लाओ। हजरत अब्बास को लगाम पकड़ाई, कहा कि मेरी तरफ से हुसैन को हदिया दे देना और कहना मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, इसलिए कि मैंने जंग जमल के बाद कसम खा ली थी शरई कि मैं किसी ऐसी जंग में शरीक नहीं होऊंगा जिसमें दोनों तरफ मुसलमान हो। पैगाम भेजा, नहीं आए। हजरत ने फरमाया अब जरा कहो कि हुसैन खुद आ रहे हैं तुमसे मिलने। पहुंच गए मेरे मौला। जैसे ही खबर आई कि हुसैन आ रहे हैं खुद मिलने के लिए, हाथ पैर कांपने लगे। एहतराम बहुत था इमाम का, एक रोब था, एक जलाल था इमाम का। खेमे से बाहर आए, मौला का इस्तकबाल किया। हजरत ने फरमाया ज़ुहैर मेरे साथ जरा 2 कदम आगे खैर बयाबान में चलो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तन्हा गए दोनों। अब ज़ुहैर की ज़ौजा कहती हैं कि जब वापस आए तो मुझे आके कहने लगे कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मैंने अपना रास्ता तय कर लिया, मैं हुसैन के साथ जाऊंगा, मैं अब हुसैन को छोड़ नहीं सकता। बनु उमय्या ने खलीफा सेवम के कत्ल को हथियार बनाकर उम्मत के अंदर फितना डाला, तफरका डाला और बहुत प्रोपेगेंडा किया, गलत फहमियां फैलाई। ज़ुहैर इब्न कैन उस मुतासिरीन प्रोपेगेंडा में से थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दूर रहते थे, कभी भी इमाम के करीब नहीं आए। हज पर ये आए हुए थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज छोड़कर आ गए, ये हज करके आए, लेकिन आ मिले इमाम के काफिले से, चलते हुए इमाम के काफिले से आ मिले और इन्हें पता चल गया कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कारवान जा रहा। रास्ता चूंकि एक ही था, ये भी उधर ही जा रहे थे, इमाम भी उधर ही जा रहे थे, दोनों का मंजिल एक थी। इन्होंने ये रवश अपना ली कि इमाम अलैहिस्सलाम के काफिले के करीब नहीं होना। जहां इमाम पड़ाव डालते, रुक जाते किसी मंजिल पर इस्तराहत के लिए, आराम के लिए या पानी लेने के लिए, ज़ुहैर अपना काफिला वहां से गुजार के आगे ले जाते। और जहां इमाम ने नहीं रुकना होता, किसी और जगह पर रुकना होता था, वहां ज़ुहैर रुक जाते। इस तदबीर के साथ जा रहे थे और नीयत में यह था कि ये इस वजह से है कि कहीं भी इनसे मुलाकात ना हो जाए, बातचीत ना हो। क्यों? कि वो उस गलतफहमी का शिकार थे जो बनु उमय्या ने फैलाई थी। लेकिन एक मकाम पर इमाम अलैहिस्सलाम ने इस चीज का एहसास कर लिया कि ज़ुहैर बचना चाहता है मुझसे, मिलना नहीं चाहता। इमाम ने कहा अगर वो नहीं मिलना चाहता तो मैं मिलूंगा उससे। इमाम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को भेजा, उनके खाने का वक्त था और खाना तैयार था, दस्तरखान पे लगा हुआ था। एक तरफ मर्द बैठे हुए थे, एक तरफ खवातीन, और खाना खा रहे थे, लुकमे तोड़े हुए थे, कुछ खाना दस्तरखान पे था। कासिद गया इनके खेमे में, दाखिल होकर सलाम किया तो खाना खाते हुए इन्होंने जवाब दिया और पूछा कि कौन हो, क्यों आए हो? तो कासिद ने कह दिया कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर आया हूँ। वहाँ रावी ने लिखा है कि बिल्कुल इनके हाथ से लुकमे छूट गए। ज़ुहैर के हाथ में लुकमा मुंह में डालने के करीब थे, वहीं रुक गया, मुंह खुला रह गया, लुकमा वहीं रुक गया, हाथ मुंजमद हो गए। थोड़ी देर तवक्कुफ करके कह दिया कि अब अब्दुल्ला से कह दो जाकर मैं माजूर हूँ, मैं नहीं आ सकता, आपसे नहीं मिल सकता, मुझे आपकी सूरत हाल का इल्म है, आपके मसाइल का इल्म है, आपके साथ क्या हो रहा है और आप क्या करने जा रहे हैं, इन हालात में मैं आपसे नहीं मिल सकता। कासिद अभी खड़ा हुआ था, रवाना नहीं हुआ। ज़ुहैर की ज़ौजा
उस खेमे से उठकर मर्दाना हिस्से में आई और आकर ज़ुहैर से कहा कि ज़ुहैर, तुझे मालूम है क्या कह रहा है? तुझे पता है किसने बुलाया है तुझे? तुझे हुसैन इब्न अली ने बुलाया है, तुझे रसूलुल्लाह के फरजंद ने बुलाया है, तुझे फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर ने बुलाया, और तू कह रहा मैं नहीं जाता। तेरे जैसे शख्स के शाया निशान नहीं है। ज़ुहैर उठे, इमाम अलैहिस्सलाम, मुझे रास्ता मिल गया है। और फिर जब साथियों को अलग कर दिया, अपनी ज़ौजा से कहा मैं नहीं चाहता मेरे बाद, मैं जानता हूँ मेरे साथ क्या होने वाला है और मेरा अंजाम क्या होगा मालूम नहीं, मैं नहीं चाहता मेरी गैर मौजूदगी में तू दुख सहती रहे, तकलीफ कर बर्दाश्त करे, तुझे मैं आज़ाद करता हूँ, तुझे तलाक देता हूँ। इमाम करबला में पहुंच गए और आशूर हो गया, और फिर शब आशूर और शाम गरीबा आ गई, और फिर ये खबर सारे सहरा में फैल गई। ज़ुहैर का काफिला करबला के करीबी सहरा में रुका हुआ था, वहां पर खबर पहुंची कि इमाम हुसैन शहीद हो गए, इमाम के सारे साथी शहीद हो गए, इमाम की औलाद शहीद हो गई। ज़ुहैर की ज़ौजा ने अपने खादिम को बुलाया और उसे सफ़ेद कपड़ा दिया, एक रुमाल में लपेट कर, और कहा कि खादिम, मैं जानती हूँ कि इस काफिले में मेरा ज़ुहैर अजनबी था, वो इन लोगों का साथी नहीं था, ये बाद में आके मिला। मैं जानती हूँ कि बाकियों को तो उनके अजीज़ों ने, रिश्तेदारों ने आकर दफन कर दिया होगा। हुसैन तो मौला हैं, हुसैन तो करीम हैं, नबी के बेटे हैं, उन्हें तो सबसे पहले दफन किया होगा, हुसैन के बच्चों को दफन कर दिया गया होगा, और कूफा वालों ने अपने साथियों को भी दफन कर दिया होगा, लेकिन मेरा ज़ुहैर अजनबी समझकर शायद छोड़ दिया होगा, मुमकिन है किसी ने दफन न किया होगा। ए गुलाम, जाकर सहरा में देखना मेरा ज़ुहैर कहाँ पड़ा है, ये कफन देकर कब्र बनाकर दफन करके फिर आ जाना। गुलाम चला जाता है, थोड़ी देर के बाद वापस आ जाता है, और ये बीबी जब खादिम को वापस आते देखती है और हाथ में वही रुमाल पड़ा हुआ है, कफन लेकर वापस आ जाता है, और बीबी उसको देखकर शुक्र करती है, अल्लाह भला करे उनका, मुझे लगता है कि लोगों ने मेरे ज़ुहैर को भी दफन कर दिया है, चूंकि कफन वापस ले आया है। गुलाम बैठकर बीबी के सामने रोने लगा, सर पीटने लगा, ए बीबी, तू अपने ज़ुहैर को रोती है, जो मंजर मैंने करबला में देखा है, अगर वो तू देखे जिगर फट जाएगा। बीबी, ज़ुहैर का मौला बेगोरो कफन पायमाल लाश के साथ, टुकड़े टुकड़े लाश के साथ पड़ा हुआ है। ए बीबी, हुसैन के बेटे गर्दने कटी पड़े हुए हैं, ए बीबी, हुसैन के असहाब पड़े हैं, वहां कई ज़ुहैर पड़े।